Assalamu alaikum. I am Muhammad Saqib Raza. Today I am here to teach you about nine science. कह रहे हैं आज तक about nine science lecture number 4. In previous lecture we have discussed question number 3 and question number 4 first three parts. Today we will do question number 4 part 3rd to 4 and question number 5 part 1 to 3. Hope you are listening to me. If you have any confusions or any problem, you can note down. I will discuss you at the end of lecture. I will give you time for questioning. Okay, let's move on lecture. Our This is question number 4, part number 3. Factorizations of the four type. In previous lecture, we have done first two questions of factorization of the four type. Remaining will be due today. Okay, let's see here. Question is 128 am square minus 242 an square. Check here what is common. As you can see that 2 is multiple of 2 is divisible to 128 and also 242, taking common 2 and also a. Here 2 and a is common, taking common 2 and a, remaining will be 264 times 128. Okay, 264 times 128, as a is common, remaining will be 64 m square. In next, here is 242. 212 times 24 and 2 1 times 2. Okay, means के 2 का टेबल 2 डिवाइजेबल है 242 पे 121 टाइम. ठीक है, तो रिमेनिंग क्या होगा, क्योंकि यहाँ भी ए कॉमन है, रिमेनिंग आ जाएगा 121 n square. Okay, hope you may understand this step. Let's move on. Check that 64 is perfect square of 64 is perfect square of 8 and 8 square. 64 is perfect square of 8 and 121 is perfect square of 11. Okay, you can write it 64 8m whole square. Okay, 8m whole square and 121 n square, you can write it 11 n whole square. Okay, so this is factorization of four type. You can see that here is formula a square minus b square. A square minus b square. A square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Okay, you can write it here. Value of a is 8n and value of b is 11n. You can write it as 21a 8m plus here 21a 21a 8m plus 11n into 8m minus 11n.
Okay. If you have any question, I will give you time for questioning at the end of lecture. Okay, hope you may understand this question. Let's move on next lecture, next question. So that's why cost of remaining 15 units is equals to 15 multiplied 6 by 15. Our answer is 92.25. Why will we multiply 6.25? Because in this table, cost of units above Our next part is question number 4, part 4. The question is 3x minus 243x cubed. Okay, let's see here what is common. What is common here? As you can see that here 3 and x is also common. Okay, 3 is divisible by 2, 3, and 3 is also divisible to 243. Okay, total cost of electricity so is taking common 3x, taking common 3x, remaining will be 3x. As 3x is common, remaining will be only 1. Okay, and 3 8s are 24. Okay, 3 8s are 24 and 3 1s are 3. So 381 times 280, 243, and 1x is also common, remaining will be x square. Okay, taking common 3x, remaining will be 1. Taking common 3x, remaining will be 1 and minus 81 x square. As you can see that 1 is also square of 1 and 81 is perfect square of 9. Okay, 81 is perfect square of 9. So you can write it 3x into 1 square minus 9x whole square. Okay, 1 square minus 9x whole square. This is factorization of fourth type. This is factorization of fourth type. You can open formula a square. You know that a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Here value of a is 1 and value of b is 9x. Okay, so a plus b into a minus b. You can write it 3x into 1 plus 9x, 3 into 1 minus 9x. Okay, hope you may understand it. Let's move on. Next question. Our next question is question number 5. Question number 5, factorizations of the fifth type. In this question, we have to use two formula. Okay. First, we have to use factorization of second type and then factorization of fifth type. In third step, you can note down. Okay, let's move to the question. X square minus y square minus 6y minus 9. Okay, x square, here minus common. Taking minus common, if we take minus common, sign of sign will also change. Okay, here minus y, that will change into plus y square, minus 6y, that will change into plus 6y, and minus 9 will change into plus 9. Okay, okay, Ashish Sadiq, I will give you answer at the end of lecture. Okay, if any of you have question, I will give you time for question answering. Okay, you can write it. You can factorize this by factorization of second type.
as you have done in second lecture. X square you can write it y square is a perfect square. Okay, y square, and 9 is also perfect square of 3. A square you can let it y square as a, y को आप a कह सकते हो और 3 को आप b कह सकते हो, जो कि ब्रैकेट के अंदर है. ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब 6y को आपने ब्रेक करना है. ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे? फार्मूले में होता है, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू है y और b की वैल्यू है 3. a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a एंड b. फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट कर दिया. a की वैल्यू a स्क्वायर और b की वैल्यू 3 है, b स्क्वायर हो गया प्लस 2. a की वैल्यू है y और b की वैल्यू है 3. यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हुआ तो ये क्लोज हो जाएगा. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर. ओके, a प्लस b का होल स्क्वायर. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे y प्लस 3 का होल स्क्वायर आप ले सकते हैं. यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे एक अगेन फैक्टराइजेशन ऑफ द 4 टाइप बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब आप लेट कर रहे हैं, x जो है वो a की वैल्यू है और जो y प्लस 3 है ये b की वैल्यू है. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑफ द 4 टाइप लगानी है. तो a की वैल्यू है x प्लस b की वैल्यू क्या है? y प्लस 3. a प्लस बी लिख दिया इंटू, अब अगेन a माइनस बी में लिखना है. a की वैल्यू लिखा, मिड में माइनस और आगे b की वैल्यू y प्लस 3 लिख दी. ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आगे क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस है तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. साइन चेंज कर देंगे. आगे x प्लस 3, x प्लस वाई प्लस 3 और ये आगे ब्रैकेट में माइनस है तो ये साइन भी चेंज कर देगा, x माइनस वाई माइनस 3. लेट्स मूव ऑन सेकंड पार्ट. और सेकंड पार्ट इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1. यहाँ भी सेम वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक कॉमन. ओके, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा? ये साइन चेंज और a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a हो जाएगा. माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा. a स्क्वायर इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर. ओके, a स्क्वायर आप 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर. ये a की वैल्यू है a और b की वैल्यू क्या है? 1. मिड में माइनस है तो यहाँ आप इसको यूँ लिख सकते हो 2. फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab की फॉर्म में लिखें. क्या 2ab की फॉर्म में लिखने से इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क पड़ता है? सेकंड और थर्ड स्टेप में कोई फ़र्क आएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देखें a की वैल्यू है यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या है? 1. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए होगा माइनस 2. a की वैल्यू क्या है? ये a लिख दिया और b की वैल्यू क्या है? 1. तो माइनस 2a और b, माइनस 2ab बन गया. ओके, तो यहाँ पे x इसको फार्मूला क्लोज हो रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब इसको फार्मूला क्लोज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर. ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है? a माइनस 1 इसका होल स्क्वायर. अब यहाँ पे फिर अगेन फैक्टराइजेशन ऑफ द 4 टाइप लगाएंगे. वो किसके इक्वल होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वो इक्वल होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. ओके, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस a माइनस 1 और x माइनस a माइनस 1. यहाँ पे नोट करें कि यहाँ बाई माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. तो आप इसको लिख सकते हो, फर्स्ट वाला स्टेप एज इट इज लिख दिया, x प्लस a माइनस 1 और आगे x माइनस a और आगे ये साइन चेंज हो जाएगा, ये
ये यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस 1. ओके, ओके, ठीक है. हेयर इज माइनस. Minus minus will change into plus. Okay, let's move on. Let's move on next question. Question number 5, part number 3. Okay, question number 5, part number 3 is 4x square minus y square minus 4x minus 2y plus 3. Here you can see that, okay, 4x square minus y square minus 2y minus 1, that is minus 4 and plus 3. अगर माइनस 4 प्लस 3 करें तो रिमेनिंग आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 1. ओके, माइनस 1 आ जाएगा. बाकी हमने एज इट इज लिख दिया, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2y प्लस 3. अब 3 माइनस 4 करेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा माइनस 1. नेक्स्ट आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे टेकिंग माइनस कॉमन, माइनस जब कॉमन लिया तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. माइनस कॉमन लेने से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. तो माइनस कॉमन लेने से वाई स्क्वायर, ये माइनस था तो प्लस 2y और माइनस था ये प्लस 1. आगे सेम जो फर्स्ट इसका सेकंड पार्ट हमने किया है सेम वैसे ही होगा. ओके, तो 2 आप 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर एंड माइनस y प्लस 1 को आप लिख सकते हैं, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 को आप लिख सकते हैं. ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. जैसे हमने सेकंड पार्ट इसका किया सेम वैसे ही इसमें वैसे सेम वही प्रोसेस है. ओके, क्वेश्चन 5 इट्स सेम लाइक क्वेश्चन 5 पार्ट नंबर 2. इसको क्लोज कर दिया y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2x a स्क्वायर. अब अगेन फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टाइप आ गई यहाँ पे. ठीक है, अब अगेन यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टाइप है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है y प्लस 1. तो a की वैल्यू लिख दी 2x प्लस b की वैल्यू है y प्लस 1. यहाँ पे लिख दिया एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ. जहाँ पे माइनस है तो वो अंदर के साइन भी क्या कर देगा? चेंज कर देगा. माइनस वाई माइनस 1, 2x plus y minus 1 into 2x minus y minus plus will be minus. Okay, this is your today's lecture. If you have any question, you can text me. I will explain you. Okay, it's your questioning time. अच्छा, ये बच्चों के होम टास्क जो आज हमने किया है वही आपका होम टास्क है. ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बता दें. अच्छा, एक क्वेश्चन है मिसबा खटक, क्वेश्चन 4 पार्ट 3 में 21 कहाँ से आया? आई विल चेक दैट. ओके, लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3.
Question number 4, part number 3. Misbah Khatak, are you there? अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 में था कि चेक करें कि क्या क्या कॉमन है। ओके, तो चेक करें 128 और 242 ये दोनों डिवाइजिबल हैं, डिवाइजिबल बाय 2, दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है। ओके, तो 2 कॉमन लें और इसके अलावा 2 के बाद ए बी कॉमन है, 2 के अलावा ए बी कॉमन है। ठीक है, ए भी कॉमन ले लेंगे यहाँ पे और 2 भी कॉमन ले लेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है कि 2a कॉमन ले लिए। यहाँ पे देखें ये जो 2 है, 2 का टेबल 12 पे कितनी जगह, यहाँ 12 और 8 है ना 128, तो इसको आप ले सकते 2 6 12, 2 4 8 मीन्स के 64 आ जाता है, 64 एम स्क्वायर। और यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि 21 कैसे आता, तो ये देख लें कि 242 है, तो 2 1 टाइम 2, ओके, तो नीचे 1 लिख दिया, और 2 2 4, 2 लिख दिया, 2 1 2, तो इससे ये बन गया 121। तो इसको आप फिर कैसे लिख सकते हो कि हारिस हादी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके, इसमें यहाँ देखिए 64n को लिख सकते हैं 8n का होल स्क्वायर, और 121 को लिख सकते हैं 11n का होल स्क्वायर। ओके, तो इस ए स्क्वायर, दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टाइप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। जी नेक्स्ट आगे किसी और का क्वेश्चन है तो बता दें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। ओके, लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। Question number 5, part 2. Okay, let's move on. Question number 5, part 2. Here taking common, minus common. जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कि माइनस कॉमन लेने से साइन कैसे चेंज हो जाएंगे। आई विल चेक दैट नाउ। अच्छा, अस्मा अमजद, आपने क्वेश्चन में पूछा था क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, वी डोंट चेंज द लास्ट साइन बिकॉज माइनस इज ऑन कॉमन। ओके, आई विल चेक दैट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस था, ये प्लस है स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 2 है, ये माइनस है तो प्लस। ओके, होप यू मे अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट आगे आपने यहाँ पे फार्मूला बनाना है। ए स्क्वायर, यहाँ पे देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर और 1 इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखें, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, बी की वैल्यू है 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab बनाना है, माइनस 2 और बी, ए और बी की फॉर्म में लिख दिया। तो फार्मूला जब क्लोज करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ द 4 टाइप बन गया है। इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देना वैल्यूज और एक दफ़ा माइनस के साथ। ओके, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो इसमें ये देखें ए की वैल्यू है x और बी की वैल्यू है a माइनस 1, a माइनस 1 है यहाँ पे। तो आप इसमें यहाँ पे देख लें कि a की वैल्यू a प्लस बी और दूसरी दफ़ा a माइनस बी, सॉरी यहाँ पे a माइनस बी है। ठीक है, a माइनस बी। अब जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस विल चेंज इनटू प्लस। अब एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा था और एक दफ़ा माइनस के साथ। x प्लस
a माइनस वन इंटू एक्स माइनस a माइनस वन। अब ये माइनस जो है ये साइन को क्या कर देगा, अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अस्मा अमजद, you may got the point, and any other student who have question number 4 पार्ट 3 समझ आ गया है, लेकिन लास्ट स्टेप में 21 किधर से आया? नीरब, I will check that. I have not seen 21. Anyone, any other of you, if you have फाद इशफाक, कौन से क्वेश्चन के लास्ट 2 स्टेप में बता दूं, जल्दी से बताएं। और सैयदा मीरब आप भी बता दें कौन सा आप क्या पूछना चाह रही हैं। यासिर सिद्दीक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। यासिर, मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 से ऑनवर्ड था। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 ये आपको सेकंड लेक्चर में समझाया गया था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप यूट्यूब से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़हारा तुफैल, वहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 4 के साथ जो x था वो रेज कर दिया था, ठीक है। तो 4 के साथ x नहीं था, जस्ट -4 और +3 था, ठीक है। -4 +3 होता है -1। सईदा मेरे क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट हाँ, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 उसका लास्ट से ओके। लास्ट में ये देखें, यहाँ पे पहले तो हमने फार्मूला कंप्लीट किया, ओके। फार्मूला कंप्लीट किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया, क्योंकि यहाँ देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये फैक्टराइजेशन ऑफ द 4 टाइप बन रही है, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ द 4th टाइप बन रही है। 4th टाइप में क्या होता था, एक से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आप लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को